My dear students, as you know, Haryana Public Service Commissions announces almost 1700 vacancies for computer science PGT. Fine, for PGT post 1700 post for only computer science students. जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि MCA, BTech, BE स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक स्टेट में 1700 पोस्ट फॉर अ सिंगल ब्रांच होना बहुत बड़ी बात है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. So in this video I am trying to cover the syllabus of computer science post for PGT. So if we talk about this syllabus, अगर हम syllabus की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास फर्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिलेबस क्या है. सिलेबस की बात करें, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. इट मींस इसमें हमें जनरेशंस के बारे में रीड करना होगा. कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, फर्स्ट जेन, सेकंड जेन, थर्ड जेन, फोर्थ जेन एंड फिफ्थ जेन, क्या क्या कंपोनेंट्स को हमने यूज किया था. टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, input devices and output devices. So if we talk about the questions, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि which one of the following is not a input device, which one of the following is a output device. Find what type, different type of software we have, which one is this particular type of software. Find application software, system software or all this stuff. Then we have CPU, the component of CPU. उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है मेमोरी. एज वी नो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, कैसे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, देन मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. फाइन. देन यूनिट्स ऑफ मेमोरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी एंड पीबी, पिकोबाइट. सेकेंड जो उन्होंने सिलेबस में दिया दैट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, then programming tools, translator, assembler, compiler, interpreter, what is the main difference between all these stuffs, how they work, and then the application software. One is system software, next is application software. तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. इवन दो दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक बट यस दे कंटेन सम important part. Next about the operating system basics. What is operating system? What is the function of operating system? What is user interface? Fine. Next is Boolean logic. Damn and damn sure you can face 3 to 4 problem from this topic. That is NOT gate, NAND gate, or NOR, XOR, their truth table and De Morgan law. Out of this, De Morgan law is very very important. Fine. Next, talking about number system. Again, 2 problems. I can say 2 problem or 2 questions from this topic. That is how to convert binary to octal, decimal, hexadecimal and conversions. Fine. Again, hardly it is a 1 to 2 hour topic. And next one is encoding scheme. We have different type of encoding scheme. When to use which type of encoding scheme, इस type के questions आपके सामने आ सकते हैं. Fine. अगर मैं बात करूं, next is कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग. तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट मीन्स ऑलमोस्ट ये हमारे एल्गोरिथम की डेफिनेशंस को कवर कर रहा है. व्हाट इज एन एल्गोरिथम? इट मीन्स हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी हैव टू डिजाइन द एल्गोरिथम. दैट इज ऑल अबाउट दिस. सो हाउ टू solve a problem, how to analyze the problem, how to develop an algorithm to solve a problem, what is different type of coding scheme, testing and debugging. Fine. And what is the flow chart? As we know कि हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. हाउ फ्लो इज गोइंग ऑन. Fine. And we need to write the pseudocode and how to decompose our algorithm. Fine. Next जो step है that is Python language. Now
again if we talk about the Python language or if I talk about the syllabus of these vacancies, तो Python language play a very important role. Almost 20% weightage is only from the Python language, keep in mind. तो पाइथन लैंग्वेज को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से, स्क्रैच से स्टार्ट करना है. फाइन, इवन दो आपको बहुत सारे कमांड्स पता होगी, इवन दो यू नो अबाउट द पाइथन, बट जो सिली मिस्टेक्स होने वाली है कि किस क्वेश्चन को किस टाइप से घुमा के दिया जा सकता है, उन चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा. फाइन, पाइथन आना एक डिफरेंट चीज़ है, पाइथन में मिस्टेक्स कैसी हो सकती है उसको एनालाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग. फाइन, तो पाइथन की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में बताया, उसके फीचर्स के बारे में, हाउ टू राइट ए सिंपल प्रोग्राम. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, वन इज इंटरेक्टिव मोड, वन इज स्क्रिप्ट मोड के बारे में हमें डिफरेंसेस पता करने होंगे. देन हमारे पास डिफरेंट जैसे कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, टोकन्स हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. Then concept of L value and R value and use of comment, ये है हमारा बेसिक पाइथन का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को डिस्कस करना है, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा टाइप को. देन हमें म्यूटेबल एंड अनम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करना है. फाइन, नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में है ऑपरेटर्स. इट मीन्स अगर मैं एनालाइज करूँ इस सिलेबस को तो पाइथन, बेसिक पाइथन की इन्होंने हर एक चीज़ को कवर किया है. फाइन, और जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो जो 4 ऑप्शंस हैं, हमारी लर्निंग इस लेवल की होनी चाहिए कि हम उस 4 ऑप्शंस में जो 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ. फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाले हैं, बट एक सिंपल सा एक पॉइंट होगा, एक टेक्स्ट होगा जिनके बारे में हमें डिस्टिंग्विश करना होगा. फाइन, ऑपरेटर्स देखने हैं हमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से हैं. देन इज नोट क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नोट इन क्या है. फाइन, तो हर एक टाइप के ऑपरेटर्स को हमें कवर करना है. देन एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट एंड आउटपुट. द सेम थिंग, हमें प्रीसिडेंस पता होना चाहिए, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या प्लस होगा, किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा. देन पाइथन स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या क्या हैं. फाइन, तो इस टाइप का हमारा सिलेबस है. नेक्स्ट हम बात करें एरर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फाइन, मोस्टली इन चीज़ों को बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं. वन इज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर. नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल में हमें सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल, इटरेटिव फ्लो, तीनों टाइप के फ्लो का पता होना चाहिए. नेक्स्ट टॉक अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट. वी नो इफ एल्स, इफ एल्स, फ्लो चार्ट, सिंपल प्रोग्राम्स, हाउ टू राइट द absolute value. We can use ABS function also, how to sort the number, how to divide the number. Fine. Next, iterative statement. We know for loop, range function, very important range function, while loop, flow chart, very important, break and continue. Then nested loop, then patterns को generate करना, finding the factorials. Fine. Next talk about strings. Again very important topic. String, very important, very important. I can mark it as very important. String, then list, and then tuple. These are very important topic for Python. आप इसमें से किसी भी एक माइनर सी चीज़ को भी स्किप नहीं कर सकते. द पॉइंट इज, इन्होंने जो यहाँ कंसीडर किया है, हर एक इनबिल्ट फंक्शन को इंक्लूड किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंड, काउंट, अपेंड, लेंथ, लिस्ट, मिन, मैक्स, सम, सॉर्ट, सॉर्टर, रिवर्स, पॉप, रिमूव. तो हर एक फंक्शन को इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो आपको एक डिटेल पता होना चाहिए, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज द डिक्शनरी. फाइन, द डिक्शनरी पार्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी. डिक्शनरी में भी इन्होंने हर एक पॉइंट को कवर किया है. गेट, अपडेट, डिलीट, क्लियर, फ्रॉम की, कॉपी, पॉप आइटम्स. तो हर एक चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है. फाइन. नेक्स्ट,
इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं और उनकी हेल्प से हम फंक्शंस और अपने प्रोग्राम में उन मॉड्यूल्स को हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसमें नेक्स्ट डिजिटल सोसाइटी, इसमें नेट के एटिकेट्स के बारे में, कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में एंड सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स क्या है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है नेट को जब हम यूज़ करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज डेटा प्रोटेक्शन। अगर हम डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे पास IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें पेटेंट का क्या मीनिंग है, देन कॉपीराइट का क्या मीनिंग है, ट्रेडमार्क, और ये इनका डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें पता करनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैसे प्लेगरिज्म क्या हो सकता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होते हैं। फाइन। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में से हमें हैकिंग क्या है, फिशिंग क्या है, फ्रॉड मेल क्या है, रैंसमवेयर क्या है, साइबर क्राइम को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट साइबर सेफ्टी। द पॉइंट इज आपको PGT, इट मीन्स आप सीनियर फैकल्टीज हैं, आप +1 +2 स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट है, मेच्योर स्टूडेंट्स है, वो इंटरनेट का बहुत यूज़ कर रहा है, तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए कि उनसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, वो नेट का कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाए, तो उस सिलेबस को यहाँ पे SPSC ने कवर किया है। नेक्स्ट इज अगेन सेफ्टी वेबसाइट, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट, मेलवेयर क्या है, वायरस क्या है, ट्रोजन्स क्या है, एडवर्क क्या है। नेक्स्ट वेस्टेज मैनेजमेंट। मान लो आप बहुत सारे मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हो, फाइन, तो जब भी आपका मोबाइल ख़राब हो रहा है, आप मोबाइल को फेंक देते हो, तो वो उसको आपको मैनेज करना है, उस वेस्टेज को आपको कैसे मैनेज करना है। फाइन। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फाइन। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। फाइन। उसमें हमें फंक्शंस के बारे में देखना है, दैट इज फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, फंक्शंस का फ्लो क्या है। देन हमारे टेक्स्ट फाइल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसमें अपडेट ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं। देन हमारे पास बहुत सारे ये फंक्शंस हैं, इनको हमें यूज़ क्या करना है, इनका यूज़ क्या है। देन हम बाइनरी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CSV फाइल, कोमा सेपरेटेड फाइल्स के बारे में भी सिलेबस में पूछा है इन्होंने। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे, स्टैक, queue. As a computer science student, this is the main area. This is all about Python. Next we talk about computer network. In computer network बेसिक्स की बात करूं तो नेटवर्किंग की हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, नेटवर्किंग में कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास आए थे सबसे पहले। फिर हमें कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को डिस्कस करना है, जिसमें सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, मैसेज कैसे सेंड होता है उसके बारे में। IP एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्विचिंग टेक्निक, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। बैंडविड्थ क्या है, बिट क्या है, बाइट क्या है, डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होते हैं, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशंस इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम बात करें मीडियम के बारे में, हमें आइडेंटिफाई करना है वायर्ड एंड वायरलेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्विस्टेड पेयर की, कोएक्सल केबल की एंड फाइबर्स की। वायरलेस में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेड्स के बारे में हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिवाइसेस, मॉडेम, ईथरनेट, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई, ये सब चीज़ें क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज, LAN, MAN, WAN, PAN and topologies is bus, star, tree, hybrid. Next about the protocol, very important. HTTP, FTP, file transfer protocol, PPP, SMTP, TCP,
POP3 HTTPS टेलनेट, और जिसमें टेलनेट, HTTPS, POP3, SMTP, FTP और HTTP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. Next we talk about the web services. What do you mean by www? Next, what is HTML? Basics of HTML. What do you mean by domain name? What do you mean by URL? Website, web browser, web hosting, all this stuff. Fine. Next, talk about database management system. Again, in database management system, we have introduction to database, then relational database model. What do you mean by key, tuple, domain, degree, all this stuff. And the most important point is SQL. Fine. The most important point is SQL. Next again an important area, that is interface of Python with SQL database. SQL पाइथन से हम SQL डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कमांड है, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाइथन किस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, हम कैसे कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम. दैट इज अगेन सेम चीज़, यहाँ पे थोड़ा एडवांस में हमने पूछा है कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, रिकवरी कैसे करेंगे और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है. सॉफ्टवेयर के बारे में अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनरिक एंड स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर क्या क्या है. डेटा स्ट्रक्चर, हम वी नो दैट different type of data structure, array, stack, queue, linked list, heap, tree, binary search, searching algorithm, sorting algorithm. Fine. Then in talk about the operating system, पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने कवर किया है जो हमारे गेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट. तो इसमें हम हमारे पास ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के बारे में, सेमाफोर और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक के बारे में एंड डेडलॉग. तो ऑलमोस्ट ये गेट का सिलेबस यहाँ इन्होंने कवर किया है. टॉकिंग अबाउट दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स, एंड देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल इज एजाइल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड देयर मेथडोलॉजी. सो नेक्स्ट इज डिजिटल लॉजिक और डिजिटल सर्किट. अगेन in digital circuit we have like number system, then flip flop, RAM. Flip flop is very important, keep in mind flip flop and number systems are very very important, and again K map. Fine. Next is TOC. TOC में इन्होंने पूरा का पूरा गेट सिलेबस को कवर किया है. अगेन इन टर्म्स ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन पूरा का पूरा गेट सिलेबस है आपका यहाँ पे. फिर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, दैट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. इसमें हमें बेसिक्स ऑफ ML हमें आइडिया होना चाहिए, AI का आइडिया होना चाहिए, NLP का आइडियाज़ होना चाहिए. फिर हमारे पास स्मार्ट सेंसर्स क्या हैं, स्मार्ट सिटी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड सर्वर क्या क्या होते हैं, और ग्रिड एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्स फंक्शन SQL में, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, वेबसाइट्स के बारे में एंड वेब ब्राउज़र. फाइन. सो देखा जाए तो अगर मैं बात करूं तो PGT कंप्यूटर साइंस के सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है. इट मीन्स आपको प्रिसाइज कितना कंटेंट रीड करना है, एक क्योंकि हर एक टॉपिक को इन्होंने पूरी पाइथन को कवर किया है, पूरा DBMS, TOC, नेटवर्किंग, डिजिटल, तो कंपाइलर डिज़ाइन, इन सब को इन्होंने बहुत डेप्थ में कवर करनी और सिलेबस इन डेप्थ दिया गया है. द पॉइंट इज़ आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत मैटर करेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और योरपीडिया ने ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं और बैचेस अनाउंस कर दिए हैं कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं. आप वेबसाइट पे जाके रीच आउट कर सकते हैं योरपीडिया या इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट को अगर आप इस मॉड्यूल को ज्वाइन करना चाहते हैं. अब हम बात करें इस मॉड्यूल की, ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, एंड इसमें डिटेल हर एक टॉपिक को विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम, विद सैम्पल टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे. फाइन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट और योरपीडिया पैनल पे अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. योरपीडिया टीम और ECP टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी. फाइन.
Thank you so much. That is all about the detail and syllabus analysis. Thank you so much.